लेकिन फिर भी हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि स्पेसिफिकली एग्जांपल पूछा गया है। स्केलर चेन जब भी एक्सप्लेन करो, डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद वर्कर वाला एग्जांपल भी देना, ठीक है। 14, 15, 16 नहीं करने, 17 आइए। Weber Sharma was working as the production manager to get his son admitted to school. He wanted to take leave. अरे आप कर चुके हैं? हाँ, 18 आइए। Dhiren Patel is the chief executive officer of a milk processing company. He is very effective manager, quite organized in his work and exhibits exemplary behavior. Dhiren Patel insists that all managers and subordinates in organization should follow a chain of authority that runs from top to bottom for all communication purposes. Can anyone explain the general principle? Scalar chain. Exemplary behavior की बात कहाँ की गई है? Exemplary behavior की बात कहाँ की गई है? Subordination of individual interest to general interest. लेकिन अगर एक प्रिंसिपल पूछा है तो किसको प्रेफरेंस देंगे? स्केलर चेन। अगर दो पूछ लें तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है जी। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था हमने एमसीक्यू इसका, फर्स्ट हो गया था, पढ़िए वही है। A worker directly contacts the CEO of the company with a complaint regarding working conditions in the factory. Which of the following principle is being violated? Scalar chain. 7. This principle will give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team members. SPD को organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom. Scalar chain. 10. The Fio's principle of dash emphasizes on kindness and justice in the behavior of managers towards workers. D. Equity. 11 पढ़िए। Centralization and decentralization. 13 पढ़िए जी। हाँ जी, 13 equity. 17 पढ़िए। ये भी 2023 का है, बहुत इजी है क्वेश्चन, पढ़िए जी। which question, which principle? Initiative. 18. If there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance. Principle of order. Assertion reason. Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. True. Principle of management highlighted here is equity, which emphasizes kindness and justice in the behavior of managers towards workers. True. और ये उसकी correct explanation. Concentration of decision-making authority is called centralization, whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization. True या false? True. According to Fio, there is a need to balance subordinate involvement through centralization with managers' retention of final authority through decentralization. False. उल्टा दे रखा है, ठीक है। Degree of centralization will depend upon the circumstances in which the company is working. In general, large organizations have more centralization than small. False. An organization consists of superiors and subordinates. The former lines of authority from highest to lowest rank is known as scalar chain. True. ठीक है, सीधा आ जाओ पेज नंबर 2.47। नहीं, एक मिनट आइए, पेज नंबर 2.36। पेज नंबर 2.36, क्वेश्चन नंबर 3rd. Gopal, a manager of A Limited, believes that the degree of concentration of authority or its dispersal will depend upon the situations and circumstances of each enterprise. Which characteristic of nature of principles of management is highlighted here? किसमें आता है जी? डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन फ्लेक्सिबल। आज एक बात समझ लो, इस चैप्टर में मुश्किल नहीं है कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म्स में, दो चीजों को छोड़ के जो इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स हैं और नेचर के पॉइंट्स हैं। हर किसी में एग्जांपल है प्रिंसिपल का,
तो आपने ये चीज हमेशा टिप्स पे रखनी है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे या नेचर का पॉइंट और प्रिंसिपल इकट्ठे पूछ लेंगे या सिग्निफिकेंस का पॉइंट और प्रिंसिपल पूछ लेंगे। हमने किए ना ऐसे क्वेश्चन। अब इसका बी पार्ट पढ़ो, बताओ जी, which principle of management is highlighted here? Explain centralization and decentralization। ठीक है, अब आ जाओ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन, each group of activities having the same objective must have one head and one plan. True. All the units of an organization should be moving towards different objectives through coordinated and focused efforts. False. True. Same objective होता है ना, towards same या common objective। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है, आंसर इज 8, टिक कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया, 2022 के फाइनल पेपर में आया, पढ़ो। आज कई बच्चों को नहीं समझ आया। कौन सी नेचर है जी, जल्दी बताइए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? नहीं, देखो, कंपनी कंडक्ट कर रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम मैनेजर्स को, किसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए? प्रिंसिपल्स की, है ना। एक एम्प्लॉय अटेंड नहीं करना चाहता, वो क्या सोच रहा है कि इस ट्रेनिंग का बेनिफिट सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को है, बट छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है। तो कौन सी नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एम्प्लॉय समझ नहीं पाया कि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी एप्लीकेबल होते हैं और ये बड़ी में भी। इसको बात नहीं समझ आ रही ना, तो किस किस फीचर में हमने ये चीज पढ़ी है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। समझ आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दामिनी डिसूजा 2018 का क्वेश्चन। हमारे यहीं के बच्चे गलत कर आए थे, कितने दिमाग नहीं चला, और इतना सिंपल क्वेश्चन था, पढ़िए। और उम्मीद भी नहीं थी उन बच्चों से कि वो ऐसी गलती करेंगे। 2 प्रिंसिपल्स बताने हैं जनरल मैनेजमेंट के, और हमने इसमें समझना है बोर्ड में कैसे क्वेश्चन को देखो फ्रेम किया। एक तो प्रिंसिपल बहुत आसान है, कौन सा? डिसिप्लिन। ठीक है, दूसरा बताइए जी। हाँ जी अनिरुद्ध, दूसरा प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वेल डन, लाइन बोलिए। It is a large organization. The regional officers have been given the powers to decide and spend funds sanctioned to them by the headquarter for the welfare of the customers of their region. इन्होंने पंचायत वाले को कन्वर्ट कर दिया एग्जाम्पल को। ठीक है, कि वहाँ पे पंचायत को दिया जाता है कि वो डिसीजन ले कि कैसे फंड स्पेंड करने हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजेस। तो हमने रीजनल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी ना, कि खुद ही डिसाइड करो कि जो आपको हेड ऑफिस से फंड्स आए हैं उनको उन्होंने कैसे स्पेंड करना है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लर्निंग टिप्स पे है, तो 1 मिनट में ये बच्चे इसी को नहीं आइडेंटिफाई कर पाए थे कोर्स में, एग्जांपल इग्नोर कर जाते हैं। समझ आया? तो कौन सा प्रिंसिपल है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बस 2-3 क्वेश्चन हैं, अगले पेज पे आओ। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2 पहला हम कर चुके हैं, कॉन्टिंजेंट है। थर्ड आ जाओ, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मैक्सिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉय शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। ट्रू। ठीक है, संगीता विजिटेड स्माइल डेंटल क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक। She observed that the receptionist was seated at the reception desk, the place fixed for her. Dental instruments were laid neatly in dental instrument trays order. Management principles enables managers to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly. As such, management principles increases managerial efficiency. For example, a manager can leave routine decision making to his subordinates and deal with exceptional
situation which require his or her expertise. कौन सा पॉइंट है जी सिग्निफिकेंस का? बताइए कौन सा पॉइंट है सिग्निफिकेंस का? बोल बोल के क्लास में याद किया हमने ये पूरे पॉइंट्स। बताइए प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट। डब्बू बनते हो सीरियसली? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी का ये है पॉइंट या नहीं? बी पार्ट। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आएगा जी, हाईलाइटेड अबव। अब प्रिंसिपल बताओ, 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद हैं, उसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो इस सिचुएशन में एप्लीकेबल हो रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम। यस, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रूटीन का काम किसको दो? सबऑर्डिनेट्स को। और एक्सेप्शनल तुमको अपने पास रखो ना वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी। सो प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Kritika Kapoor firmly believes in providing fair wages to the employees, superior value to the customers, care for the environment and honest dealings with business associates. कौन सा है जी प्रिंसिपल? बोलिए बोलिए which principle? Equity. Very good. State the point of importance of management of principles highlighted here. बताइए। बस एक नहीं दो नहीं, बस नंबर लेंगे। उन्हीं ने दिमाग लगाया, बाकी तो टाइम पास। किसमें हमने पढ़ा ये? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें इक्विटी का एग्जांपल आया ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। जो आप आंसर नहीं ना फाइंड आउट कर पाते हैं उस पे अपने अपने निशानियां लगा लो और समझ लो कि तुम्हारे ये क्वेश्चन तुम्हें एंड तक पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्वेश्चन फॉर्म्स की। गॉट इट? चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, ये समझ लो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे 7। इसमें पहले करेक्शन कर लो। ए पार्ट में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल है, एस नहीं है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक। एक प्रिंसिपल ढूंढो, एक टेक्निक ढूंढो पहले, फिर एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हाईलाइट हो रहा है। जहां मैंने देखा कि टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, वहां हमारा दिमाग ही नहीं चलता। गलत बात है। तैयार नहीं हो बिल्कुल भी बोर्ड्स के लिए, अभी तो मेरे को 1% भी नहीं तैयारी नजर आ रही आपको। प्रिंसिपल तो बहुत इजी है जी, कौन सा? डिसिप्लिन। बिल्कुल जी, पता आ गया, पता चल गया डिसिप्लिन कहाँ से है। टेक्निक बताइए। टेक्निक फैटिग स्टडी, शाबाश। अब कैरेक्टरिस्टिक बताइए। कॉन्टिंजेंट नो, ये एग्जांपल आता है बिल्कुल। कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू सी द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। नो, हाँ, डेवलप फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मजेदार क्वेश्चन है, ट्विस्टिंग। समझ आ गया जी? होमवर्क कलेक्ट कर लो मैडम फटाफट सबसे। होमवर्क दीजिए। कल टेस्ट के टॉपिक्स मालूम है? फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन, फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैम को कॉपी पकड़ा के जाओ जो फटाफट जिसने जाना है।